یہ ہے رخسانہ اور اس کا گھر۔ رخسانہ ایک بہت ہی نیک دل خاتون تھی جو بہت ہی غریبی میں جی رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنے گھر کو پوری طرح ہنسی خوشی چلانے کی کوشش کرتی تھی۔ امی جان، کیا آپ روز دال چاول ہی بناتی ہیں؟ کچھ اچھا بھی بنا لیا کریں۔ روز ہی دال چاول کھا کھا کر ہم تنگ آ چکے ہیں۔ سعد کی ایسی باتیں سن کر اس کے ابو جان اس کو سمجھاتے ہیں۔ میرے پیارے بیٹے ساتھ ایسا نہیں بولتے ہیں، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھو، ہر حالت میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلو کھا لو اچھے بچوں کی طرح۔ اچھا رخسانہ، میں اور ساتھ کام پر جا رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، ابھی تک ہم نے ڈھابا ہی نہیں کھولا۔ چلو اب ہم چلتے ہیں، تم اپنا اور سائرہ کا خیال رکھنا، اور کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو، میں لے آؤں گا۔ ارے نہیں نہیں، سب کچھ گھر میں موجود ہے، اللہ پاک کا شکر ہے۔ آپ اور ساتھ جائیے، ڈھابے پر بہت دیر ہو گئی ہے، ابھی تک ڈھابا ہی نہیں کھولا۔ ڈھابے ہی سے تو ہمارا گھر چلتا ہے۔ آپ لوگ جائیے، بارشوں کا موسم ہے، دیکھ کر جائیے گا اور جلدی ہی واپس گھر آنا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ آپ لوگ شام ہونے سے پہلے پہلے ہی آ جائیں، کیونکہ بارش ہو گئی تو پھر راستے میں آنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیے، اللہ حافظ۔ پھر سعد اپنے ابو جان کے ساتھ ڈھابے پر چلا جاتا ہے، کیونکہ ڈھابے ہی سے ان کا گھر چلتا تھا۔ اسی گاؤں میں انہوں نے ایک ڈھابا کھول رکھا تھا۔ سعد اپنے ابو جان کے ساتھ اس ڈھابے پر صبح سے لے کر شام تک کام کرتا رہتا تھا۔ سعد 12 سال کا تھا۔ یہ عمر تو پڑھنے لکھنے کی ہوتی ہے، لیکن غریبی کی وجہ سے رخسانہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتی تھی، اس لیے سعد اپنے ابو کے جان کے ساتھ اسی ڈھابے پر کام کرتا تھا، مگر سعد کے امی ابو اسے دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے کہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ کام کرتا ہے۔ یہ ہے شہناز بیگم، جو رخسانہ کے ساتھ والے گھر میں ایک بڑے بنگلے میں رہتی تھی، جو کہ امیر تھی مگر اسے اپنے پیسوں کا بہت گھمنڈ تھا۔ ارے سائرہ، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، ابھی تک اسکول نہیں جاتی؟ ہاں 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 ہاں، مجھے پتا ہے، تم غریبوں کے پاس پیسے کہاں ہیں۔ سائرہ شہناز بیگم کی باتیں سن کر بہت دکھی ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے اپنے گھر اپنی امی جان کے پاس جاتی ہے اور اپنی امی جان کو ساری بات بتاتی ہے۔ رخسانہ کا دل بھی بہت دکھی ہو جاتا ہے شہناز بیگم کی ان باتوں سے، مگر پھر بھی وہ سائرہ کو سمجھاتی ہے، مگر سائرہ بہت دکھی ہوتی ہے شہناز بیگم کی باتوں سے۔ امی جان، ہم کب اسکول جائیں گے؟ دیکھیے نا، نہ میں اسکول جاتی ہوں نہ سعد بھائی جاتے ہیں، ہم آخر اسکول کیوں نہیں جاتے؟ شہناز آنٹی کتنا برا بھلا بولتی ہیں۔ رخسانہ بہت صبر والی عورت تھی، اس لیے وہ اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ صبر سے رہنا سکھاتی تھی۔ میری بیٹی، دیکھو، صبر کرو، صبر سب سے اچھی چیز ہے۔ میں جانتی ہوں آپ اور سعد بیٹا دونوں بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو اسکول جانا چاہیے، لیکن ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ڈھابے سے آپ کے ابو جان کو جو پیسے ملتے ہیں، ان سے گھر کا ہی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، لیکن دیکھیے گا، اللہ پاک ایک دن ہمارے صبر کا صلہ ہمیں ضرور دیں گے اور ہم آپ کو بہت اچھے اسکول میں داخل کروائیں گے۔ پھر رخسانہ اور سائرہ نماز پڑھنے لگتی ہیں۔ یا اللہ پاک، ہماری مدد کیجیے اور ہمارے حالات کو بہتر کر دیجیے۔ میں نے اور میرے بچوں نے ہمیشہ صبر کیا ہے، ہمیں اس کا نیک صلہ دیجیے۔ رخسانہ جیسے بھی حالات میں رہتی، لیکن اسی میں شکر گزاری کرتی۔ کوئی اگر رخسانہ کے گھر کچھ مانگنے کے لیے بھی آ جاتا تو کبھی کسی کو منع نہیں کرتی تھی۔ ارے کیسی ہو رخسانہ بہن، مجھے ذرا ایک کٹوری چاول دے دو، میرے گھر میں چاول تھوڑے ہو گئے ہیں۔ یہ لیجیے آپا جان چاول، آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو تو لے جا سکتی ہیں، میرے پاس زیادہ کچھ تو نہیں، مگر ہاں، اگر میں آپ کی کسی طرح مدد کر سکتی ہوں تو میں دل سے کروں گی۔
अरे रुखसाना बहन, मुझे तुम्हारी यही बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ तो नहीं, मगर कभी तुमने किसी को अपने दर से खाली हाथ नहीं जाने दिया। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। फिर शाम होती है तो सब बैठे होते हैं घर में, मगर ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे अम्मी जान, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मगर आप और अब्बू जान क्यों परेशान हैं? आप भी बारिश के मजे लीजिए ना हमारी तरह। परेशान क्यों हो रहे हैं आप दोनों? बेटा, बारिश हमें भी अच्छी लगती है, मगर हम परेशान इसलिए हैं कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और हम परेशान अपने ढाबे की वजह से हैं कि कहीं बारिश में हमारा ढाबा ना ख़राब हो जाए। इसीलिए हम इतने परेशान हैं। बारिश और ज़्यादा तेज़ होने लगती है। सुबह जब साद और हामिद ढाबे पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका ढाबा सब टूट गया है और चीज़ें आसपास बिखरी हैं, जिसे देखकर हामिद बहुत दुखी होता है। या अल्लाह पाक, ये क्या हो गया है? मेरा सारा ढाबा टूट गया है। मेरी रोजी का एक यही तो जरिया था। अब मैं क्या करूँगा? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अब्बू जान, परेशान मत होइए। देखिए, आपने ही तो हमेशा हमें सब्र से रहना सिखाया है। आप भी परेशान मत हो। अल्लाह पाक जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। देखिएगा, अल्लाह पाक ने हमारे लिए ज़रूर कुछ अच्छा सोचा होगा। आप बस अभी सब्र से काम लीजिए। साद अपने अब्बू जान को तसल्ली देता है। फिर हामिद की अचानक नज़र पड़ती है तो सामने एक कड़ाही पड़ी होती है। हामिद सोचता है कि चलो इसी को घर ले चलता हूँ, ये कड़ाही मेरे ढाबे की है। फिर हामिद उस कड़ाही को उठाकर घर ले जाता है। अरे क्या हुआ? आप लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आप लोगों ने ढाबा नहीं खोला? क्या बात है, आप घर क्यों आ गए हैं? फिर हामिद रुखसाना को बताता है कि उनका सारा ढाबा टूट गया है। रुखसाना, हमारा सारा ढाबा टूट गया है। बस मुझे वहाँ ये कड़ाही मिली तो मैं उठा कर ले आ गया कि मेरे ढाबे की निशानी है। तुम इसको रख लो। रुखसाना हामिद से कड़ाही ले लेती है और उनको समझाती है, आप दोनों परेशान मत होइए, अल्लाह पाक ने ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। हम सब्र कर लेते हैं, अल्लाह पाक ज़रूर बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। फिर रुखसाना अल्लाह पाक से दुआ मांगती है, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। हम आज मुसीबत में हैं, लेकिन तू बहुत रहीम व करीम है। या अल्लाह पाक हमारी मदद कीजिए। फिर रुखसाना जाके कड़ाही को रख देती है और जैसे तैसे हो अपने घर को चलाने की कोशिश करती है और हामिद को बताती है, हामिद जी, घर में राशन कम हो गया है, अब कुछ ही दिन चलेगा, लेकिन हम बाद में क्या करेंगे? इसलिए मैं सोचती हूँ मैं कहीं काम कर लूँ। साथ में ही शहनाज आपा का बंगला है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। मैं वहाँ सफाई का काम कर लूँगी। आप भी इतने दिनों में कोई और काम ढूंढ लीजिए। फिर रुखसाना शहनाज के घर काम करने के लिए जाती है, मगर वो परेशान होती है क्योंकि शहनाज बहुत ही घमंडी औरत थी। शहनाज रुखसाना से दिन भर ढेरों काम करवाती, ढेरों किस्म के उसको खाने बनाने के लिए कहती, कभी क्या तो कभी क्या फरमाइशें करती, जिससे रुखसाना बहुत परेशान होती, मगर मजबूरी में वो काम करती रहती। मगर फिर भी शहनाज रुखसाना को बात बात पर बातें सुनाती रहती थी। अरे रुखसाना, मेरे खाने को यूं आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो?
हाँ, तुम गरीबों ने इतना खाना कहाँ देखा होगा। चलो मेरा जूठा खाना जो बचेगा वो ले जाना। शहनाज की ऐसी बातें सुनकर रुखसाना बहुत दुखी हो जाती है। बस कीजिए शहनाज बेगम, इतना मत घमंड कीजिए अपनी अमीरी का। मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे अपना यूं जूठा खाने को कहें। मैं जा रही हूँ आपका काम छोड़कर, आप किसी और को रख लीजिए। फिर रुखसाना घर आ जाती है और खाना बनाने लगती है। सामने उसके वही कढ़ाई पड़ी होती है। चलो जो खाना थोड़ा सा बना सकती हूँ वही बना लेती हूँ। घर में राशन तो थोड़ा है। ये कढ़ाई, ये तो ढाबे की कढ़ाई है। चलो इसी में ही आज खाना पकाती हूँ। फिर रुखसाना खाना बनाने के लिए जैसे ही बैठती है तो क्या देखती है कि उसके सामने बिरयानी और गुलाब जामुन अचानक से आ गए हैं। रुखसाना भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो दिल में गुलाब जामुन और बिरयानी का सोच ही रही थी, तो उसके सामने आ गए। रुखसाना ऐसा सोच ही रही थी कि सब घर वाले फिर आ जाते हैं और रुखसाना उनको ये सब बताती है। अरे देखिए आप लोग, ये कैसे हुआ? मैं तो दिल में बिरयानी और गुलाब जामुन का सोच रही थी। मुझे लगता है ये कढ़ाई जादुई कढ़ाई है। चलिए आइए, अगर ये जादुई कढ़ाई है तो हम अपने ही दिल में अपनी अपनी पसंद के खाने सोचते हैं और देखते हैं क्या वाकई होगा ऐसा। फिर वो सब दिल में जो जो खाना सोचते हैं तो अचानक जादू से वो सब खाने उनके सामने हाजिर हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली कढ़ाई नहीं है, ये एक जादुई कढ़ाई है। अब देखिए, उनके हालात इसी जादुई कढ़ाई से अच्छे हो जाते हैं। इसी जादुई कढ़ाई की मदद से वो दूसरों की मदद भी करते हैं। जिनको खाना नसीब नहीं होता उनको खाना भी देते हैं और अपने लिए एक रेस्टोरेंट भी उसी ढाबे की जगह पर खोल लेते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी अब गुजारने लगते हैं। और जब रेस्टोरेंट में उनको खाना बनाना हो तो बस जादुई कढ़ाई को सामने रखते हैं और दिल में सोचते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। फिर जादुई कढ़ाई से वही खाने आ जाते हैं और उसी से उनका रेस्टोरेंट चल रहा था, जिससे उनके घर के हालात भी बेहतर हो जाते हैं और अब वो एक बहुत बड़ा घर भी ले लेते हैं। फिर रुखसाना हामिद से कहती है, हामिद जी देखिए, हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। अब हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल भी भेजें। हाँ हाँ रुखसाना, तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही इनका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता हूँ। तो देखा बच्चों आपने, रुखसाना हमेशा सब्र से रहती थी। इसीलिए कहते हैं ना, सब्र सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जैसे भी हालात हो, हमें सब्र से रहना चाहिए।